Jai Somnath friend, I hope you and your family members are happy. So friend, here we will see chapter number 1 of social science in standard 8. So the chapter name is here given socio-religious reforms. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. The condition of women was worst in this narrow minded society. So, friend, in the 19th century, there were many social evil customs are prevalent in our Indian society, as like superstition, illiteracy, ignorance, evil social custom, caste system, etc. And during that time, the condition of women was very worst. Various evil customs were widespread in our society, like the custom of dudpiti, female infanticide by immersing a newborn girl child into a container full of milk. Sati system means burning of women on her husband's funeral pyre, denial of widow remarriage etc. कि ये सब जो एविल कस्टम्स थे तो वो कौन कौन से एविल कस्टम्स थे, तो यहाँ पे कुछ हमें दिए गए हैं। जैसे कि दूध पीती, तो उनको दूध पीती जो है तो वो एक एविल कस्टम था। तो वो कैसे वो लोग उसको प्रैक्टिस करते थे, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक मिल्क से भरा हुआ जो कंटेनर है तो उसके अंदर जो भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसको अंदर डुबो दिया जाता है और उसको ये इस तरह से मार दिया जाता था, तो उसको दूध पीती कहते थे। सती सिस्टम की जो एविल कस्टम है तो उसको कैसे प्रैक्टिस करते थे, तो जब भी कोई पर्सन की डेथ होती थी उस वक्त कोई, तो उस वक्त उनकी जो वाइफ थी तो वो वाइफ को भी उनके पति की चिता के साथ जल जाना पड़ता था। तो ये भी एक एविल कस्टम थी। फिर जो विडो जो भी बनते थे तो उसको रीमैरेज करने की जो अपॉर्चुनिटी है तो वो नहीं देते थे। तो इस तरह से ये सब जो एविल कस्टम्स है तो वो उस वक्त प्रिवेलेंट थी। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, a new awakening means renaissance began in the 19th century to remove the evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Ram Mohan Roy was the first among such reformers. यानी कि उस वक्त जो एक वेस्टर्न एजुकेशन के कारण जो एक न्यू अवेकनिंग यानी कि जो रिनेसेंस की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई थी, तो उसके कारण सोसाइटी में से जो भी एविल कस्टम्स थे तो उसको दूर किया गया था और उसके लिए जो एक इंटेंसिव एफर्ट्स किया था, यानी कि किसी ने सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो एफर्ट्स किए थे कि ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, तो उसमें राजा राम मोहन रॉय जो थे तो वो फर्स्ट पर्सन थे, एक फर्स्ट रिफॉर्मर थे कि जिन्होंने ऐसी जो एक्टिविटी है रिफॉर्मिंग एक्टिविटी तो उन्होंने शुरुआत की थी हमारे इंडिया में। तो हम यहाँ पे जो राजा राम मोहन रॉय की जो एक सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. So friend, Raja Ram Mohan Roy was born in 1772 in Bengal in the Hooghly district. The native village of Raja Ram Mohan Roy was Radhanagar and he was belonged from Brahmin family. Raja Ram Mohan Roy got married in his early childhood. His brother's wife became Sati on her husband's death. कि राजा राम मोहन राय का जो मैरिज हुए थे तो वो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो गए, यानी कि वो जब छोटे थे तो उसी वक्त ही उनका मैरिज हो गया था और उनके जो ब्रदर की जो वाइफ थी तो उनको सती बनना पड़ा था उनके भाई की जब डेथ हुई थी तब। This incident shook Rajaram Mohan Roy deeply. He initiated many reforms and protested strongly against the evil customs such as child marriage, casteism,
Dudpiti, etc. So, friend, the incident of Sati, of his brother's wife, so he was deeply shocked, and from that he initiated many reforming activity, and he had started protesting activity against evil customs such as child marriage, caste system, Dudpiti, etc. He started the Bengali newspaper, namely Samvad Kaumudi, in the year 1821 CE, and also Mirat al Akbar in Persian in the year 1822 CE. कि राजा राम मोहन रॉय ने जो बंगाली न्यूज़पेपर जो था तो वो बंगाली न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया था 1821 में। तो उनका जो टाइटल था तो वो संवाद कौमुदी था, और पर्शियन लैंग्वेज में जो था तो वो मिरात अल अकबर था, कि जो 1822 में वो पब्लिश हुआ था। ब्रह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1828 सी। राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। He recommended many changes to British government like the independence of press, freedom of speech, women's right, personal liberty, judiciary, independent from executive, etc. So friend, Brahmo Samaj was established in 1828 by Raja Ram Mohan Roy, and he had also established the Hindu College in Kolkata, and he had also recommended many changes for Indian people to the British government, as like independence of press, freedom of speech, women's rights, personal liberty, judiciary independent from executive, etc. Raja Ram Mohan Roy started movement to abolish the sati system. So friend, Raja Ram Mohan Roy had also started to one of the movement to abolish the sati system, यानी कि राजा राम मोहन रॉय ने इंडिया में से जो सती सिस्टम जो प्रैक्टिस होती थी, कि जो एक सोशल एविल कस्टम था, तो उसको रिमूव करने के लिए भी एक मूवमेंट शुरू की थी, जिसके कारण जो सती सिस्टम है तो उसको नाबूद कर दिया गया था। As a result, the British Governor General of Bengal, Lord William Bentinck, passed a law to abolish the sati pratha, means sati system, कि राजा राम मोहन रॉय के एक इंटेंसिव एफर्ट्स के कारण उस वक्त के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो उन्होंने बंगाल में सती प्रथा जो थी, सती सिस्टम जो थी, तो उसको नाबूद करने के लिए एक जो लॉ है तो वो लॉ फ्रेम किया था। This law was framed in the year 1829 CE, so it can be said that Raja Ram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance, means the new awakening, with regards to initiating social, religious and political reforms. कि ये जो लॉ है तो वो लॉ 1829 में फ्रेम हुआ था, और ऐसा कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे तो वो एक इंडियन रेनेसेंस के एक फाउंडर माने जाते हैं, कि जिन्होंने सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी। द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830 सी इन रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। Raja Ram Mohan Roy died in Bristol in the year 1833 CE, कि राजा राम मोहन रॉय को दिल्ली से जो इंग्लैंड भेजा गया था अपनी कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मैटर में, तो वहाँ पे 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। ब्रह्मो समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन द रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज मीन्स सोसाइटी, कि ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया था, तो उन्होंने हिंदू समाज में, हिंदू सोसाइटी में जो रिफॉर्मिंग एक्टिविटी में जो रोल था, तो एक वाइटल रोल था, एक एक्टिव रोल था ब्रह्मो समाज का। ब्रह्मो समाज ट्राइड टू एबोलिश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ्स प्रिवेलेंट देन, कि ब्रह्मो समाज ने जो भी सुपरस्टिशंस हमारे कंट्री में थे, जो भी रिलीजियस बिलीफ्स थे हमारी कंट्री में प्रिवेलेंट थे, तो उसको अबोलिश करने के लिए, उसको रिड्यूस करने में ब्रह्मो समाज का जो एफर्ट्स थे तो वो एक्टिवली एफर्ट्स थे, कि जिसके कारण कुछ जो इम्प्रूवमेंट थे तो वो इम्प्रूवमेंट ब्रह्मो समाज को दिखाई देता था।
और इंडियन सोसाइटी में भी ये इम्प्रूवमेंट जो था तो वो आया था। तो यहाँ पे आप साइड में एक पिक्चर देखते होंगे, तो वो पिक्चर जो है तो वो राजा राम मोहन रॉय का पिक्चर है। Now friend, here we will see about Dayanand Saraswati. He was also one of the reformer of India. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless. कि दयानंद सरस्वती जो थे वो भी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और सौराष्ट्र के जो मोरबी है तो मोरबी के टंकारा विलेज से वो बिलोंग करते थे। और वो अपनी चाइल्डहुड से ही मानते थे कि जो आइडल वर्शिपिंग है और रिलीजियस रिचुअल्स है तो वो वर्थलेस है, यानी कि वो मीनिंगलेस है। He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He became a sannyasi, as like a ascetic, a recluse, and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virjanand Dandisa in Mathura. कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जो घर है, अपनी जो फैमिली है तो वो छोड़ दी थी। और वो क्यों छोड़ी थी, तो वो सच की सोच में, यानी कि ट्रूथ की सोच में उन्होंने अपनी जो फैमिली है तो फैमिली को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने 15 इयर्स तक इंडिया की ट्रैवलिंग की थी, और उस वक्त उन्होंने जो योगा है तो उसके बारे में भी स्टडी की थी, और वो बाद में सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बनने के बाद उन्होंने जो फिलोसॉफी है तो हिंदुइज्म की जो फिलोसॉफी है तो उनके बारे में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के पास से ये स्टडी जो है तो वो एजुकेशन उनसे ली थी। Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and casteless society. He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे भी अटेम्प्ट किए थे कि जो नेशनल यूनिटी है तो वो नेशनल यूनिटी बने, उसमें क्लासलेस जो है और कास्टलेस जो है, तो ऐसी एक सोसाइटी को फ्रेम करके वो एक नेशनल यूनिटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने इंडियन कल्चर और रिलीजियस जो है तो वो रिलीजियस को भी उन्होंने ये वेदास के में से वो पढ़ा था। ही प्रीच टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास, यानी कि उन्होंने एक अपने उपदेश में ये भी कहा था कि इंडियन पीपल को गो बैक टू वेदास, यानी कि जो हमारे जो वेद है तो उसकी ओर अब वापस आ जाओ। ही ब्रॉट अ बुक इन टाइटल सत्यार्थ प्रकाश। He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, rituals, child marriage, sati pratha means system, untouchability, etc. So friend, Swami Dayanand Saraswati had also written one book which name was Satyarth Prakash, and he also made people to make aware in the Vedas. So there is no mention in the Vedas about evil customs such as idol worship, rituals, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। यानी कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती लोगों को ये पढ़ाते थे कि हमारे जो वेद है तो वेद में कहीं पे एविल कस्टम्स के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, तो हमें भी ये जो एविल कस्टम्स है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो उपदेश है तो ऐसे जो प्रीच है तो वो लोगों को वो देते थे। ही एडवोकेटेड मोनोथियज्म एज लाइक देर इज ओनली वन गॉड, कि वो मोनोथियज्म के ऊपर वो मानते थे, और वो ऐसा कहते थे कि दुनिया में सिर्फ एक ही गॉड है। ही प्रीच इन हिंदी एंड एज अ रिजल्ट हिज थॉट्स रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड आर्य समाज इन 1875 CE, branches of which were established in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. So friends, Dayanand Saraswati had established one institute which name was Arya Samaj in 1875, and the branches of this institution were located in Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat.
Consequently, social changes occurred rapidly. Arya Samaj started a movement to reconvert those people to Hinduism who had changed their religion out of force or choice and were willing to return to their original faith. कि उसके बाद जो आर्य समाज की एस्टेब्लिश करने के बाद जो सोशल चेंजेस है तो वो रैपिडली यानी कि खूब जल्दी से जो सोशल चेंजेस आने शुरू हो चुके थे। और आर्य समाज ने ये भी इनिशिएट किया था, एक ये भी मूवमेंट किया था कि जो भी पर्सन ने जो भी पीपल ने हिंदुइज्म को छोड़कर दूसरे कोई और रिलीजन को अपनाया है ज़बरदस्ती से या फिर अपनी खुद की चॉइस से, तो उनको वो अवेयर करते थे कि वो वापस अब जो अपने हिंदू रिलीजन है तो उसमें वो आ जाए, यानी कि फिर से वो हिंदू बन जाए। तो ऐसे जो एफर्ट्स है, ऐसे जो मूवमेंट है, तो वो भी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. So after the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by the leaders as like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. In the year 1902 C, Kangdi Gurukul was established near Haridwar by Swami Shraddhanand. Arya Kanya Mahavidyalaya was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values. 1902 में जो कांगड़ी गुरुकुल है तो वो हरिद्वार में एस्टेब्लिश की थी, हरिद्वार के पास में। और उसको जो कांगड़ी गुरुकुल को एस्टेब्लिश की थी तो वो स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और आर्य कन्या विद्यालय जो है तो वो वडोदरा में शुरू हुई थी और उसमें जो डिसिप्लिन है, डिग्निटी, जो लेबर की जो डिग्निटी है, टॉलरेंस है, पेशेंस है, मोरल वैल्यूज है, तो उसके बारे में ये जो एजुकेशन है तो वो वहाँ पे पढ़ाया जाता था। Now here we will see about another reformer which is here given, Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was the torchbearer of the Indian culture. He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. He was born in Kamarpukur village of Hooghly district in Bengal. सो फ्रेंड, रामकृष्ण परमहंस वॉज टॉर्च बेरर ऑफ आवर इंडियन कल्चर, कि इंडियन कल्चर के टॉर्च बेरर जो थे तो वो रामकृष्ण परमहंस थे। कि इन्होंने भी एक बहुत सी, वो भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, साथ में एक संत भी थे कि जिन्होंने जो रिलीजियंस के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। उनका जो जन्म हुआ था तो बंगाल में हुआ था, हुगली डिस्ट्रिक्ट के कमरपुकुर गांव में उनका जन्म हुआ था। He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. यानी कि वो अपने चाइल्डहुड से ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो एक्टिव रहते थे और बाद में वो जो दक्षिणेश्वर में जो काली टेम्पल है तो वहाँ पे उनके वो प्रिस्ट बन चुके थे, यानी कि वो वहाँ पे पुजारी थे। Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge, कि बहुत से लोग जो है तो वो उनसे प्रभावित हुए थे, वो उनके प्रति वो आकर्षित हुए थे क्योंकि उनके जो नॉलेज था अपने जो रिलीजियस के बारे में तो वो बहुत ही अहम नॉलेज था, एक और बहुत ही डीप नॉलेज था। He tried to attain God in various forms. Many religious reforms like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. So friend, many reformers as like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had also obtained guidance from him. यानी कि बहुत से ऐसे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे जैसे कि केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, तो उन्होंने अपने जो ये गाइडेंस है तो उनसे ली थी। Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preachings of Ramakrishna Paramhans, कि
वो जो वेस्टर्न कल्चर्स से जो इन्फ्लुएंस हुए थे तो उनको वो वापस लाने में उनका जो रोल था तो वो भी अहम था कि वो इंडियन पीपल को वो अपने अपना जो वैल्यूज़ है तो वो वैल्यूज़ को वो सिखाते थे। Now friend, here we will see about Swami Vivekanand. He was also one of the reformer of our India. A Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902 CE, came into contact with Ramakrishna Paramhans, who reciprocated his quest for knowledge. कि एक बंगाली युवान जिनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था कि जिसका जन्म 1863 में हुआ था और वो जो थे तो वो रामकृष्ण परमहंस से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे और उन्होंने उनमें से जो नॉलेज है तो वो नॉलेज सीखा था। Narendra became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic means sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekanand. कि जो नरेंद्र थे नरेंद्रनाथ दत्त थे तो वो बाद में रामकृष्ण से वो इन्फ्लुएंस हुए थे और बाद में वो उनके एक डिसाइपल बन गए थे, यानी कि वो उनके एक शिष्य बन गए थे और वो भी बाद में सन्यासी बन गए थे और सन्यासी के बाद उनको लोग स्वामी विवेकानंद के नाम से वो जानते थे। He did an intensive study of the Indian and Western philosophy. Swami Vivekananda advised people to serve the poor and look for God in needy people. कि स्वामी विवेकानंद लोगों को एडवाइस देते थे कि जो भी पुअर पर्सन है तो उनको सर्व करो, यानी कि उनकी सेवा करो, तो आप उसमें जो भगवान है तो भगवान आपको उसमें नीडी पीपल में आप देख सकोगे। He imbibed pride for our rich cultural heritage and faith in a bright future in the Indian youngsters. कि उन्होंने जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है और हमारे इंडियन यंगस्टर्स के जो उनका जो ब्राइट फ्यूचर है तो वो उनको वो देखते थे। He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the United States in the year 1893 C. कि उन्होंने जो एक रिलीजियंस जो मीटिंग हुई थी शिकागो में यूनाइटेड स्टेट्स में 1893 में तो वो भी उन्होंने अटेंड की थी। With his influential speech, he provided understanding about the Indian philosophy and culture. So, friend, there were he had given influential speech and he had also provided understanding about the Indian philosophy and culture. यानी कि इस पार्लियामेंट में जो रिलीजियस मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने जो इंडियन कल्चर के बारे में लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन दी थी। He propagated the Indian culture by touring various countries like the United States, Europe, Egypt, China, Japan, etc. He was an ardent supporter of the Indian culture and a devout nationalist. He gave the legendary slogan to the Indians, "Arise, awake and stop not till the goal is achieved." कि उन्होंने बहुत सी जो कंट्रीज़ थी तो वो उनकी विजिट की थी और उनके बाद वहाँ पे उन्होंने अपने जो इंडियन कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, तो उनके बारे में जो नॉलेज है वो नॉलेज वहाँ पे वो उन्होंने स्प्रेड किए थे और साथ में वो एक इंडिया के एक एक्टिव नेशनलिस्ट माने जाते हैं और उन्होंने जो इंडियंस थे तो उनको एक अपना जो लेजेंडरी स्लोगन है तो वो स्लोगन दिया था और वो स्लोगन क्या है तो यहाँ पे आप देख सकोगे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। यानी कि उन्होंने इंडियन यंगस्टर को ये स्लोगन दिया था कि उठो, जागो और जब तक आप अपने गोल को अचीव न करो तब तक आप मेहनत करते रहो। Swami Vivekananda established Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE in the name of his guru. So friends, Swami Vivekananda had established one organization with the name Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 in the name of his guru. इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूर कि रामकृष्ण मिशन का जो हेडक्वार्टर था तो वो बेलूर में था। दिस मिशन अडोप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स
कि ये जो मिशन था तो मिशन में जो स्वामी विवेकानंद ने अपने जो गुरु थे तो उनके जो आइडियल्स थे, उनके जो मैनकाइंड्स थे, तो वो उनके ऊपर वर्क करते थे और ये प्रिंसिपल्स के साथ ये मिशन जो था तो वो काम करता था। The mission followed the slogan "Service to man is service to God" by gaining motivation from the life of रामकृष्ण परमहंस। कि ये जो मिशन था तो वो एक स्लोगन के साथ काम करता था, जो स्लोगन था सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि अगर हम मानवीय की सर्विस करते हैं तो हम मान लो कि वो गॉड की ही सर्विस करते हैं। ऐसे स्लोगन के साथ रामकृष्ण परमहंस ने जो दिया था तो उनकी लाइफ में से मोटिवेशन लेकर ये जो स्लोगन है स्लोगन बनवाया था और ये यही स्लोगन के साथ ये मिशन जो था तो वो मिशन भी काम करता था। दिस मिशन ओपन स्कूल्स अक्रॉस द नेशन फॉर imparting एजुकेशन। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीड। कि ये जो मिशन था तो उन्होंने जो स्कूल है तो स्कूल भी शुरू की थी, एजुकेशन भी शुरू की थी और साथ में जो हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल्स भी शुरू की थी। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रोड। कि आज भी ये मिशन की जो ब्रांचेस है तो इंडिया में काम कर रही है और अब्रोड में भी वो काम कर रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो पढ़ा है तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस में कुछ और जो आगे के जो टॉपिक्स है तो उसको हम कवर करेंगे।